राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं। फिलहाल वह बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह में आज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान वहां पर उन्होंने छात्रों से भी बातचीत की और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दौरान चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के 70वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए रांची पहुंची हैं। वहीं बीआईटी मेसरा स्थित जीपी बिरला ऑडिटोरियम में आज उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ साथ सीके बिरला, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू विशेष रूप से मौजूद रहे। सीके बिरला के परिवार के सदस्य भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। गवर्नर ऑफ झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड श्री सुदिव्या कुमार जी, चेयरमैन ऑफ बीआईटी मेसरा श्री सीके बिरला जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर इंद्रानील माना जी, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड ऑफ द एकेडमिक काउंसिल, फैकल्टी एंड स्टाफ, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, जोहार। I am very glad to be here among you. It is a historic milestone at the Birla Institute of Technology, Mesra, which has contributed immensely to the developmental saga of our nation, completed 70 years. My heartiest congratulations to you and to everyone associated with this pioneer institute on its Platinum Jubilee. The faculty and administrators, past and present, as well as students and alumni must be commended for the quality and excellence that BIT stands for. Your institute has imparted engineering education in this mineral-rich region, which is also a prominent manufacturing hub. I have served Jharkhand as governor and this university as chancellor, and I am also proud of its rich legacy. Every time I visit Jharkhand, it has been like a homecoming for me. BIT has been an integral part of the state's history. The Platinum Jubilee is an apt occasion to celebrate and honor the institute's contributions to education, research, and innovation in engineering, technology, and allied fields. It is time to appreciate the accomplishments of the students, faculty, alumni, and their achievements in academics, research, infrastructure, and societal impact. BIT has been a pioneer in a number of fields. The first department of space engineering and rocketry in the country was established here in 1964. One of the first science and technology entrepreneurship park to promote engineering entrepreneurship was also set up here in 1975. It is also the only technological university in Eastern India, imparting education at the certificate, diploma, bachelor, master, and doctoral levels in science, management, and engineering in about 20 disciplines. The Institute's culture of nurturing talent is also reflected in the accomplishments of its alumni, who include leaders in every sphere of life, such as education, entrepreneurship, industry, administrative services, journalism, literature, and sports. I am told that BIT has recently expanded beyond its traditional area, offering courses now in quantitative economics and data science, humanities, and animation and multimedia. Technology and humanities are really complementary, and bringing them together under one roof also realizes the vision behind the national education policy. Ladies and gentlemen, ours is the age of technology. New advances in the field of information technology, for example, have changed the way we live. What was unthinkable till yesterday has become reality today.
There are very few inventions that change the world around us the way mobile telephone has changed it. It is gladdening to note that these advances have become accessible for most people in the society. The gaps in digital access are getting reduced very fast. A downside of this trend has been an explosion in cyber crimes, but these are also being countered with a rise in awareness. The coming years are going to be even more dramatic, with far-reaching advances expected, particularly in artificial intelligence and machine learning. As AI rapidly transforms economies, the government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. BIT was indeed ahead of the curve as it introduced a BTech course in artificial intelligence and machine learning in 2023. The change brought about by AI and other technologies is also reflected in our languages. Till a few years ago, the word disruption, to take one example, meant something to be worried about. But now it has a positive connotation. A break or an interruption in the normal course is now something to be welcomed. But as technology creates great disruption in societies, I believe we should remain concerned about its impact on the marginalized groups. The great opportunities being created should be available to all. The great transformations being brought about should benefit all. However, I remain an optimist. There are hundreds of reasons for my hopes, and they are all before me here. I am referring to the youth whose enthusiasm and commitment will be the key ingredient in the making of a Viksit Bharat. I am especially happy to see so many young women here. As I visit institutions of higher education across the country, I see our daughters raising the bar of excellence. They are not lagging behind in science, technology, engineering, and mathematics either. I would also like to offer a word of advice. Often, the problems around us do not need any big technological intervention. Let us not forget the importance of small-scale, traditional solutions. Indeed, innovators and entrepreneurs must not ignore the knowledge base of traditional communities. Ladies and gentlemen, I am confident that BIT Mesra will continue to make rich contributions to the continuing evolution of science and technology in India. I once again congratulate everyone associated with this prestigious institute in the past and present as well on the occasion of Platinum Jubilee, and wish you all success in your future endeavor. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जोहार, आप सभी को नमस्कार। हमारे बीच में हम सबके सौभाग्य से उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सुदीप कुमार जी, अध्यक्ष BIT मेसरा श्री R.K. बिरला जी, कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य, एकेडमिक परिषद के सभी सदस्यगण, सभी अतिथिगण, संकाय सदस्यगण, अधिकारीगण और कर्मी, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि पर परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने हेतु इस संस्थान के कुलाधिपति के रूप में
राष्ट्रपति महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति महोदया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा के इस ऐतिहासिक प्लेटिनम जुबली समारोह में आपका आगमन न केवल इस प्रतिष्ठित संस्थान के लिए बल्कि संपूर्ण शिक्षा जगत के लिए सौभाग्य का विषय है। जब से आपके झारखंड आगमन की सूचना मिली है, तब से राज्यवासियों में उत्साह एवं हर्ष का माहौल है। आपने अपने 6 वर्षों से अधिक झारखंड के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया और पीपल्स गवर्नर के रूप में आपकी कार्यशैली और जनसेवा की भावना ने झारखंड के जनमानस में गहरी छाप छोड़ी है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बीआईटी मेसरा इस देश में कई इंजीनियरिंग विषयों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की समृद्ध विरासत के साथ एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए आयामों के उदय के साथ ये अपने कुशल युवा इंजीनियरों और प्रबंधकों के लिए नई संभावनाएं भी प्रस्तुत कर रहा है। 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना इस संस्थान के दूरदर्शी संस्थापक श्री बीएम बिरला जी की एक बहुत ही प्रशंसनीय पहल थी, जिन्होंने इस देश के विकास के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के महत्व को सही ढंग से समझा। तब से बीआईटी ने एक लंबा सफर तय किया है और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को तैयार किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता से संस्थान और देश का नाम रोशन किया है। ये संस्थान निरंतर नए नवाचारों और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो इसे विश्व स्तर पर विशिष्ट बनाता है। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि बीआईटी मेसरा ने विद्यार्थियों की सोच को विकसित किया और उन्हें एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार किया है जो कि उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा उनके समाधान ढूंढने की शक्ति प्रदान करती है। तेजी से बदलते समय में जब प्रतिदिन नई तकनीकें, चुनौतियां और अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, तो युवाओं के पास ये विजन और क्षमता होनी चाहिए जो उन्हें अपनी राह पर अडिग रखे और समाज के उत्थान में योगदान दे सके। मुझे विश्वास है हमारे विद्यार्थी जो कि ज्ञान और मूल्य यहाँ अर्जित कर रहे हैं, वो देश की प्रगति में योगदान देंगे। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति महोदया नारी शिक्षा की प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने विषम परिस्थिति में भी उच्च शिक्षा ग्रहण की। अपने कार्यकाल के दौरान बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण हेतु उन्होंने राज्य में स्थित विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का भ्रमण भी किया। उनकी प्रेरणा से देश की लाखों बेटियां पढ़ने हेतु आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न दीक्षांत समारोह में देखा जा रहा है कि हमारी छात्राएं छात्रों की तुलना में अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं। ये दर्शाता है कि जब अवसर मिलता है तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती हैं। ये नए भारत की तस्वीर है। बीआईटी मेसरा न केवल इंजीनियरिंग और प्रबंधन में बल्कि सामाजिक समावेशिता की दिशा में भी कार्य कर रहा है। यहाँ संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान विशेष रूप से आदिम जनजातियों सहित आरक्षित श्रेणियों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है, जो रोजगार उद्यमिता के बेहतर अवसर की दिशा में सहायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने में बीआईटी मेसरा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बीआईटी के संकाय सदस्यों और विद्वानों से आह्वान करता हूं कि इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें और इस देश की आम जनता और उद्योगों के लाभ के लिए नए इंजीनियरिंग मॉडल, उपकरण, मशीनें और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं। आपकी उद्यमिता, नवाचार और अनुसंधान में सहभागिता देश की प्रगति के नए आयाम की ओर ले जाने का काम करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
का उद्देश्य हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम और सशक्त बनाना है। संस्थान ने इसे अपनाकर अपने पाठ्यक्रमों को न केवल समृद्ध करने का प्रयास किया है, बल्कि विद्यार्थियों को एक बहुआयामी दृष्टिकोण भी दिया है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान निरंतर अपने छात्रों को नवीनतम तकनीकों, अनुसंधान और व्यावसायिक कौशल से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब शुक्रवार को राजधानी रांची पहुंची थी, उस दौरान वह राज्यपाल के साथ उन्होंने राजभवन में बिताए हुए अपने पलों को याद किया। परिसर में स्थित उद्यान सहित युद्ध टैंक, चरखा आदि को उन्होंने देखा। दरबार हॉल में राष्ट्रपति कुछ चुनिंदा लोगों से मुलाकात करने के बाद राजभवन में स्थित प्रेसिडेंट स्वीट में रात्रि विश्राम करने चली गई, जहां उन्होंने शाकाहारी भोजन भी किया।